ایک دن میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان ہے جو مجھے وقت آنے پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا تم میرے لیے باورچی خانے کے برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا سکتے ہو جس میں یہ تمام کاٹ کباڑ رکھ دوں؟ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری جیب میں فی الحال گنجائش نہیں تھی کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے اس سے 2 مہینوں کا وقت مانگا اور ان 2 مہینوں میں میں نے اپنے کام کے وقت کو دگنا کر دیا اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی 2 مہینے ختم ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے مزدور بلا لیے۔ کچھ دنوں میں ہی میں نے باورچی خانے کے برابر میں اس کی مرضی کے مطابق کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا۔ میں روزانہ معمول کے مطابق کام پر جاتا، مگر اس دن کی کمرہ بنوانے کے بعد سے مجھے اپنی بیوی کا رویہ اپنے ساتھ کچھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی تھی اور اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا دھیان ہرگز اس کی طرف نہیں گیا تھا کہ اس کے رویے کی وجہ وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان کبھی بھی کسی بھی بات پر اتنے سالوں میں لڑائی نہیں ہوئی، حالانکہ ہمارے ہاں اولاد بھی نہ تھی، تو بھی نہ کبھی میں نے اسے تانا دیا اور نہ ہی کبھی میری بیوی نے اس بات پر ناشکری کا اظہار کیا۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بے حد خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا، کبھی اسے گجرے لا کر دیتا تو کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں اسے نہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، نہ ہی وہ مجھ سے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائش کیا کرتی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں۔ میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ میری بیوی کو بہت پریشانی لگ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ پریشانی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات سے بہت حیران ہوا اور میں نے غصے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس بچے پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں اور حیران ہو گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے دفتر جاتے ہوئے کہا کہ آج میں گھر پر جلدی آؤں گا اور ساتھ میں میرے کچھ دوست بھی ہوں گے، تو تم چائے کا انتظام کر لینا۔ میری اس بات پر میری بیوی مجھ سے بہت خفا ہوئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اس بات پر ہم خوب لڑے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے کسی دوست کو چائے پر بلایا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو چائے پہ بلایا اور میری بیوی نے چائے کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا اہتمام بھی کیا ہوتا تھا، لیکن آج خلاف معمول۔ میری بیوی کی اس بات پہ میں بہت حیران ہوا۔ نہ جانے اسے میری جلدی آنے سے کیا پریشانی تھی، یا پھر میرے دوست کے ساتھ آنے پر، یا پھر ہمارے لیے چائے کے اہتمام پر۔ بہرحال میں نے اس دن جلدی آنے کا اور اپنے دوست کو ساتھ لانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کئی دنوں تک ہم میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن مجھے سخت بخار ہو گیا تو میں کام پر جانے کی قابل نہیں رہا۔ اتنے میں میری بیوی نے میری خوب خدمت کی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان پریشان سی لگتی تھی۔ زیادہ تر وقت کچن میں گزارا کرتی۔ مجھ میں اتنی نکاہت تھی کہ میں اٹھ کر کبھی اس کی مدد نہیں کرواتا تھا۔ وہ میری بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میں غسل خانے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ میری بیوی باورچی خانے کے بعد بیٹھی ہوئے رو رہی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ بہت پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے لگا وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے کھانسی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنی۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ آخر میری بیوی اور میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، تو یہ سرگوشیاں کس کی ہیں؟ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں بہت پریشان تھا۔ میں اٹھ کر باورچی خانے کی طرف گیا، لیکن مجھ سے زیادہ چلا نہ گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ ان کچھ دنوں میں میں نے بہت سی مرتبہ اسے صبح باورچی خانے کے برابر میں بنے ہوئے کمرے سے
बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, तो मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए गया, तो मैंने अपनी बीवी को वहाँ नहीं पाया। मैं बावर्ची खाने से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वो बावर्ची खाने के बराबर में बने हुए कमरे से बाहर निकली और मुझे देखते ही वो घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी उसे बावर्ची खाने के बराबर में बने हुए कमरे से निकलते देखा था, तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से ये इस कमरे में जाती है। लेकिन आज इसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी बीवी से अब मज़ीद बहस करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी खूब खिदमत करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं दफ्तर के लिए उठा, तब भी बीवी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो बावर्ची खाने में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं बावर्ची खाने में गया, तो वो भी मौजूद ना थी। मैंने गुसल खाना और घर का कोना कोना चेक कर लिया, मगर मेरी बीवी कहीं मौजूद ना थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वो आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया, ये आवाज़ें इसी गैर मामूली कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, तो वो अंदर से लॉक लगा हुआ था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया ही था कि मेरी बीवी पीछे आ खड़ी हुई। उससे दरियाफ्त किया कि वो कहाँ थी, तो उसने मुझसे कहा कि वो सामान सेट करने की खातिर उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी बीवी इस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। मैं दिन रात इस परेशानी में घुलता जा रहा था। ये परेशानी मुझे खाए जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे पता नहीं और मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। मैंने इस बात का जिक्र जब अपने दोस्त से किया, तो वो मुझे करीबी एक बाबा के पास ले गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें वो बातें बताएंगे जो आम इंसानों को नहीं मालूम होती। जब बाबा से तमाम तफसीलात बयान की, तो उन्होंने कुछ दिन का वक्त देकर मुझे बताया कि हमारे घर में आसेब है, और वो आवाज़ें इंसानों की नहीं, आसेबों की हैं। पहले पहल तो मैंने बाबा की बात का एतबार कर लिया, लेकिन मेरा दिल इस बात पर मुतमईन ना था। मुझे नहीं लगता था कि वो किसी आसेब की आवाज़ है। अब ये अक्सर होता था कि जब भी मेरी बीवी छुपकर इस कमरे में जाती, तो मैं इसका पीछा करता, लेकिन सरगोशियाँ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में ना आती, और मैं छुपकर अपनी बीवी का ताक़ुब करता रहता। मुझ में इतनी हिम्मत तो ना थी कि मैं अपनी बीवी से इस बात के लिए इस्तफ़ार करूं। मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है, और मैं कभी भी इससे इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने इस दिन के पैसे पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी बीवी की बात मानी थी और उसे कमरा बनवा कर दिया था। कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी किसी ख़ास हू के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी एक दिन औरत है, और कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी वो औरत है जो छुप छुप कर मुझसे इस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता कि किसी भी बुनियाद पर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाऊं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी बीवी 24 घंटे दरवाजे की पहरेदारी करती रहती है। जब भी मैं इसकी तरफ जाता था, मेरी बीवी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती, मेरा इस तरफ से ध्यान हटा देती। मैं बहुत परेशान था। अब मेरे जहन पर वो कमरा और उसका दरवाज़ा बोलना तारी हो चुका था। लेकिन मैं क्या करता। मैं अपनी बीवी को इस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं खोज लगाना चाहता था और अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में खुद को इससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता, दिल चाहता कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, बीवी को तलाक दे दूं और इसके सारे काले करतूत सामने ले आऊं। मगर मैं परेशान था। मेरे पास कोई सबूत ना था। एक दिन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं दफ्तर ना जाऊं और पूरा दिन अपनी बीवी की हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी,
تو मैंने उसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने बीवी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, मैं इसके पीछे छुप गया कि मेरी बीवी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब जब मैंने इसकी चाबी के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि उसने अपना कीमती जेवर भी इसी कमरे में छुपा रखा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता चोर आ गया तो वो तो इस कमरे को काट कबाड़ का कमरा समझेगा और इस कमरे की तरफ इसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं दो लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के दो कप देखकर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। मेरे घर में मौजूद होने के बावजूद मेरी बीवी ने किसी और को इस घर में रखा हुआ था। मैं गुस्से से लाल हो रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती है और मुझसे ज़्यादा मुकद्दम समझती है। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी बीवी एक बच्चलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा हुआ है। मैं जो इतने अरसे से ही समझता रहा कि मेरी बीवी या तो किसी आसेब के साए में है या कोई और मामला, अब मुझे अपनी बीवी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि इस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे तय नहीं हो पा रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है। अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस और मजबूर आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो इस दुनिया से कोच कर जाऊंगा या फिर अपनी बीवी को जान से मार दूंगा। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैंने इन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीने से शराबोर हो रहे थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था और मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को जुम्बिश दे रहा था कि दोबारा से सरगोशी मेरे कानों में आई। मैं अपने हवास में ना था। मुझे तो ये सरगोशियाँ पहले भी समझ नहीं आती थी। मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी बीवी को पुकारा। मगर ये क्या, ये मंजर देख कर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं जो अभी तक अपनी बीवी को तलाक के 3 अल्फाज सुनाने का इरादा रखता था और मुझसे वो एक मिनट भी बर्दाश्त ना थी, अगले ही सेकंड मैं अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा नादिम था। मैंने क्या देखा कि किसके लिए नाश्ता लेकर गई है और इसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने इस निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा था, वो मेरी सौतेली माँ है। मैं आलिया को कितना गलत समझ रहा था, कभी इसे जादू टोने वाली औरत तो कभी मैं इसे बदचलन समझ रहा था। इस तरफ मेरी चीख की आवाज़ सुनकर आलिया के हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम ज़मीन में गाड़ दिए हैं। अपने आप को ना जिंदों में पा रहा था ना ही मुर्दों में। आलिया इतने अरसे से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसकी खिदमत किए जा रही थी, जो कि मेरा फ़र्ज़ था। मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने पर तैयार ना था। मुझे वो शुरू से ही कबूल ना थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत की वजह वो मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी जहन से कुछ बातें बिल्कुल मिट नहीं सकती थीं और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार ना था। मेरी बीवी ने कई बार मुझे दबे लफ्ज़ों में समझाया कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो पालने वाली हो चाहे पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर मेरी शदीद नाराज़गी ने मेरी बीवी को इस बात पर इसरार ना करने पर मजबूर कर दिया। आलिया ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत बज़्ज़न हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में आलिया से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास कोई घर रहने को ना था। आलिया रहमदिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में नाचाकी ना हो इस वजह से उसने मुझसे ये बात छुपाए रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दी। वो बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वो दोनों जानिब से फंस चुकी थी। एक तरफ शौहर था तो एक तरफ इसके दिल में रहमदिली कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। आलिया का इतना बड़ापन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू पर पानी में ही डूब मरा। आलिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम रवादात सुनकर मैं इतना रोया कि आलिया और मेरी माँ को चुप करवाने पर भी
میری ہچکیاں نہیں رک رہی تھی، یہ لگ رہا تھا کہ کوئی آئے اور میرے ہاتھ کاٹ دے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں چور ہوں، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان کا کردار ہونا ہی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کے دل میں نرم گوشہ ہو تو وہ علی جیسے لوگوں کی طرح بڑا بن کر دکھا سکتے ہیں۔